हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑक्सफोर्ड मेटल वर्क्स। सो आज का जो ये दिस थिंग इज बेसिकली व्हाट इट इज अ पीस ऑफ राउंड स्टॉक एमएस का है। 250 मिलीमीटर्स प्लस है, क्लोज टू अराउंड 255 मिलीमीटर्स। एंड इसका थिकनेस कुछ 40 मिलीमीटर के आसपास है। पिक्चर में आप देख पाओगे स्क्रीन में। तो दिस इज़ हाउ द पार्ट इज़ गोइंग टू लुक। इज़ गोइंग टू बी अ बुल गियर ऑफ सम सॉर्ट, जो कि ईवी व्हीकल्स में यूज़ होता है। दिस इज़ अ प्रोटोटाइप डिज़ाइन विच वी आर मेकिंग फॉर वन ऑफ आवर कस्टमर्स। और उनको जो है चाहिए होगा, दे हैव शेयर्ड मी द स्टेप फाइल, बट देन मोस्टली मोटा मोटा जो है वी हैव नोटेड डाउन बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट टू वर्क विथ ओल्ड फैशन्ड पेपर दैन टू गो ओवर द कंप्यूटर एंड चेक द डायमेंशंस। तो इसका जो होल पैटर्न है is going to be a hole pattern of 12 holes which are 8 millimeter holes each. Okay, और इसमें बीच में एक बड़ा सा बोर आएगा। the bore is going to be 135. so we are setting this up for now the bore। अभी बोर हम लोग इसमें कर रहे हैं because the lathe that we have, this one, the big one, the 18 chuck one is close to around 200 millimeters। ये 250 मिलीमीटर के आसपास कुछ है। not going to work with the kind of chuck that we have, so work holding की वजह से we are doing this on the mill। और इसका हेड हम लोग ने टिल्ट किया बिकॉज वी हैव दिस वाइस विच वी डोंट वांट टू मूव, क्योंकि वाइस भी चाहिए होगा कुछ और कामों के लिए। एंड एवरी टाइम वी ओपन द वाइस यू नीड टू जस्ट गो अहेड एंड tram the vise every time you open the vise। so we are keeping the vise as is। we want to use the additional table surface, so we have moved the head। one nice thing about this kind of milling machines, so much versatility। okay, anyways, तो इसका जो होल है 135 मिलीमीटर। सो दिस आर सम पैरेलल्स विच वी हैव यूज्ड। ये ऐसा ही पैरेलल हम लोगों ने यूज़ किया इसके नीचे, एंड वी हैव स्पेयर वंस। सो वी आर स्ट्रैप क्लैंपिंग दिस राइट नाउ। ऑलराइट, इस साइड का हो गया। द रीज़न वी आर डूइंग इट इन दिस ओरिएंटेशन, इसका कीवे पे ये वाला स्लॉट में है और दूसरा वाला ये वाला स्लॉट में है, बिकॉज वी वांट टू इंडिकेट दिस फोर साइड। सो दिस फोर साइड इज टू बी एक्सेसिबल, सो दैट्स वाई। तो इसको भी हम लोग माउंट कर रहे हैं। ऑलराइट, बाय द वे गाइस, बहुत दिनों से बहुत सारा वीडियोस आया नहीं है। आई कैन सी द पीपल हैव शिफ्टेड एंड नॉट वाचिंग इन मच ऑफ आवर वीडियोस। तो आई नो कि कस्टमर का जो डेडलाइन होता है वो डेडलाइन मीट करना है और उसके साथ साथ वीडियो अटैच करके भेजना। इट इज़ समथिंग दैट बिकम्स टू मच वर्क फॉर अस बिकॉज आई एम अ सिंगल मैन working in my workshop। so usually sometimes it is not feasible because always would be my priority is to deliver my customers on time rather than making videos। so I apologize for the inconvenience। okay, so since like this is set up, the setup is going to work now। next job, you have to indicate this is my y0। I hope I have enough travel। I don't think we would have a lot of travel। No, we don't have much travel। okay, because we don't have a travel, now I don't want to take out the RAM and do all that kind of setup because it's going to be a pointless exercise। why I tell you, because there is a center point over here। now here is a center point and this is my normal pointer। it is close to around 254 now, and ये it's very close to center as you can see। maybe 1-2 millimeter का run out हो सकता है। so we are going to use this as a reference center because anyways we are going to turn this OD relative to the ID। तो ID में अगर center हम लोगों ने कर दिया, we can indicate this to make a true concentric part which are both parallel to each other। so we are going to go with this। so the first order जो हम लोग को करना पड़ेगा, that is we have to keep this aside and we are going to use
our center drill to start with the first hole. Now this is our center drill. Let me just bring this in close, not making this visible, so we have switched off the light. Okay, so I think mostly that we are in the center of the hole. Alright. So we are going to mark this as x0 and y0, and we are going to lock our cables. We shifted. Okay. So we are going to lock our y-axis as well, because we don't want any movements. And once we start with the boring part, we are going to lock the knee as well. So let's start. Center drilling done. Next part, we are going to do a 6 millimeter pilot. And we are going to full depth all the way through. तो ये okay. Next up, we are going to drill with this drill. I don't know the size. It's what, 25 by 64. जो लोग इंडिया में रहते हैं, it's very difficult to understand 25 by 64, which means it's close to 10 millimeters. Okay. टेबल थोड़ा नीचे जाएगा. All right. और नीचे जाएगा टेबल. ओके. तो इसके लिए स्पीड भी हम लोग कम कर देंगे. We don't need this high speed. All right. Too much sword. All right. This is done too. All right.
Next we have to find a even bigger drill. Okay, last time we were drilling with this. It is a close to around 16 millimeter or 17 millimeter drill or something like that. 17 and a half measures close to around. This is the drill that I am talking about. Alright. Yeah. Because it's already fitted to the shank, we are going to drill with this. तो उसके लिए क्या? This is a ISO 32 MT2 adapter, and this drill has a MT2 shank. मोमेंटली ना इसको बाहर निकल रहे हैं ताकि ज़्यादा स्ट्रिंगी चिप्स ना हो फॉर चिप कंट्रोल. Alright. So now what we need to see, the reason we are drilling, कायदे से तो हम लोगों को बोरिंग करना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग ड्रिलिंग क्यों कर रहे हैं? ये ड्रिलिंग पहले इसीलिए कर रहे हैं because we have this boring bar. Alright. छोटा बोरिंग बार है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. This has been featured many a times in our previous videos. 12 मिलीमीटर का बोरिंग बार है and this was 16. So कायदे से ये अंदर जाना चाहिए and it is going. So we are not going to do any more drilling because drilling is painful. Boring is not. Boring is boring. Drilling जो है दोस्तों ये बहुत ही painful process है. But then boring is not a painful process. It is a boring process. So like the name says. So we are going to set up with the boring of the part 235 millimeters from 16 millimeters. 16 millimeters ही होगा, I think. No, it's 18 millimeters. So this is the 18 millimeter drill. Sorry. Okay. Keep this aside. Now. So basically in the boring head, this is where the boring holder goes, and these are 3 places where the boring holder can fit. छोटा होल के लिए ये, बड़ा वाला होल के लिए ये, इससे भी बड़ा होल चाहिए होगा. You put the boring head like this. Let's see. और ये जो है ये, this is the give and this is the give adjustment. You loosen one of the gives and then use this dial which is 0.01 mm increment के साथ है. So let's just see how this drills. पहला तो let's start it. Put it in gear. We're going the opposite way. Okay, we have to bring the feed. Feed चाहिए होगा इसके लिए. Okay. So this is in feed now. I hope this is the correct way. It is going above. Okay.
ये एडजस्टर नट जो है ना, इसको हम लोग डेप्थ सेट करने के लिए यूज़ करेंगे अभी। अभी ना बाद में इसमें क्विक चेंज हम लोग एडजस्टर नट यूज़ करेंगे। हम लोग बनाएंगे, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। So this is the nut I am talking about. We are trying to adjust it. Okay, this is where it stops. Let me check the action once more. Okay, this auto retract mechanism was giving us some trouble, तो हम लोगों ने कुछ एडजस्ट किया है अभी। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पहले we need to tighten this nut. It's a very delicate process actually. Okay, let's see. It's working fine. Now we need to give it depth. So, loosen the give. इसमें हम लोगों ने डेप्थ दिया। Tighten the give and go with the next pass. उससे पहले we are going to use some cutting oil. We are going to start. There is a little bit of sound क्योंकि अभी ये एग्जॉस्ट पंखा हम लोगों ने ऑन किया बिकॉज देयर इज़ टू मच ऑफ स्मोक। Okay, so we are at 41.5 millimeters. A long way to go. अभी तो शाम को 7-10 बज गया। इतना ही कर पाया बिकॉज सारा दिन हम लोग था नहीं, वी वर आउट, कुछ काम था। सो वी आर कंप्लीटिंग दिस। आज तो ये कंप्लीट शायद से होगा नहीं, टुमारो जितना हो सके आज का हम लोग देख लेते हैं एंड विल स्टार्ट। जितना भी आज हुआ बाकी का वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल रात को वी बोर्ड इट अप टू क्लोज टू अराउंड, इसका अगर हम लोग मेजरमेंट करें दैट कम्स टू अराउंड 60, या वेरी क्लोज टू 61 millimeters. So we are going to start with the process again. तो कॉफ़ी तो पी लिया हम लोग। एंड बाय द वे ये अभी बहुत ज़्यादा स्वार्फ निकल रहा है, सो वी आर क्लीनिंग द स्वार्फ एज वेल।
जो चिप्स आता है ना ऐसा, ये बहुत ज़्यादा निकल रहा है बिकॉज द बोर्ड इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर, तो द मटेरियल रिमूवल इज़ ऑल्सो गेटिंग बिगर. एंड देन ऑल्सो वन थिंग वी डिड, इफ आई जूम इन यू कैन सी क्लियरली कि कल रात को वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. तो ये सेकेंड मोस्ट पोजीशन है ऑफ द बोरिंग हेड. देखते हैं इससे कहाँ तक ये ड्रिल होता है, मतलब बोर होता है. एंड देन क्योंकि ये 135 मिलीमीटर है, शायद से 135 मिलीमीटर तक जाएगा नहीं. विल हैव टू पुट इट हेयर, ओके, एंड बोर इट आउट. और उसके लिए शायद से वी हैव टू सेक्रीफाइस दिस बोरिंग बार, और इसको काट के छोटा करना पड़ेगा. बट वी विल सी टू इट वंस वी गो देयर. सो लेट्स स्टार्ट. द मशीन इज़ ऑन. पहले गियर डाल देते हैं, एंड गियर डालने के बाद वी आर गोइंग टू switch on our DRO as well. Okay, so we are all ready. अभी क्या मटेरियल रिमूवल इज वेरी हाई, तो एवरी टाइम हम लोगों को क्या फीट जो है वो कम डालना पड़ेगा. और वी आर गोइंग टू हैव टू स्लो इट. आई थिंक दिस फीड रेट इज नाइस बिकॉज द बोर्ड इज गेटिंग बिगर एंड बिगर. बट बिकॉज हम लोग का अभी वाइट चिप से निकल रहा है, सो वी कैन गो विद द फास्टर प्रोसेस. बहुत ही कम ही हम लोग को फीट डालना पड़ेगा बिकॉज द होल इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर. वरना स्लो में तो हम लोग लास्ट में भी रन कर सकते हैं. अगर अभी स्लो कर लेंगे ना, इट इज़ गोइंग टू टेक वे लॉन्ग टाइम. तो ये लेद में बहुत फास्ट होता है, बट सिंस वी कैन नॉट यूज़ दिस पार्ट इज़ दिस बिग के लेद में हम लोग बोरिंग नहीं कर पाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज़ गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर. बट एनीवेज ये काम करते करते हम लोग दूसरा भी काम वर्कशॉप में कर रहे हैं. So it is not affecting our productivity as much. One good thing इसके auto fit cut off है, तो every time the tool hits this top position it retracts automatically. तो हम लोग मशीन को बंद करके फिर and it makes a sound ताकि हम लोग वो लेग में अगर काम कर रहे हैं तो it becomes easy for us to understand कि हाँ चलो ठीक है, ये जो पास है ये पास complete हो गया and we can move forward with the next pass. Like this is the next pass. Okay, so we'll continue this and meet with you later. A few moments later. Okay, so क्या है कि we have bored this out to I believe close to around 90 millimeters, 88 millimeters. Okay, one thing I would like to say over here, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लेद का काम जो है ना वो लेद में ही होता है अच्छे से. लाइक अब जैसे मेरे पास इतना बड़ा चक नहीं है, समवेयर अराउंड 10 इंचेस का चक चाहिए होगा. ओके, टू गेट दिस जॉब फिटेड ऑन द लेथ. उसमें 8 इंच का चक है, सो वी आर डूइंग इट दिस वे. बट ऐसा कहने को तो ये कर सकते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग क्वाइट नाइसली. लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है ना कि इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. अभी देखिए ये जो कटर है इट्स ओनली 10 मिलीमीटर. अगर लेथ में होता है वी कुड हैव यूज्ड अ बिगर कटर, मतलब बोर्डिंग बार जिसका डायमीटर कुछ 1 इंच तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 1 इंच बोर्डिंग बार्स. तो फिर वी कैन टेक अ यूज डेप्थ ऑफ कट और भी काम भी बहुत फास्ट होता है बिकॉज हर एक टाइम में वी हैव टू स्टॉप दिस मशीन, वी हैव टू
अनस्क्रू दिस गिव स्क्रूज, ठीक है। अभी तो 2 करना पड़ रहा है, एंड देन वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट कट। फिर इसको टाइट करना पड़ रहा है ऐसे, एंड देन इसको डाल के वी आर स्टार्टिंग द कट ईच एंड एवरी टाइम, एंड इट इज कटिंग। अभी एक काम के लिए तो एक चक खरीदना, इट इज़ डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज ये काम को उतना पैसा नहीं जाएगा जितना कि एक चक लेने में आएगा। एंड सिंस वी ऑलरेडी हैव अ 18 चक, तो 10 इंच चक खरीदने से ज़्यादा कुछ मतलब बनेगा नहीं, बिकॉज 2 इंचेस के लिए लगभग अराउंड 20,000 रुपये के आसपास देना। आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेंट रेट ऑफ चक्स विच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, लेकिन जब ये मैंने ले दिया था तो मैन्युफैक्चरर को मैंने बोला था कि यू गिव अ 12 इंच चक, ठीक है। दैट टाइम बिकॉज आई वॉज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट आई वॉन्टेड टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। लेकिन क्या है, जैसे दैट इस ब्लेड मशीन के लिए 18 चक ही बेस्ट है, तो आप वही लीजिए। अगर इससे बड़ा आप लेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी वारंटी, तो उस वारंटी का इशूज़ था। दैट इज़ द रीज़न वाई वी गॉट विद द 18 चक। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट मिलिंग मशीन के ये जो काम है, वरना मुझे माना कर देना पड़ता है ये काम के लिए। हम लोग कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव द मिलिंग मशीन, ठीक है। तो क्योंकि कस्टमर के पास थोड़ा वक्त है, बिकॉज दिस डज नॉट रिक्वायर्स अ फुल टाइम। तो मेरा अभी आप पीछे मैं आपको लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस व्हाट यू कॉल इट वॉशर्स। जैसे कि ये सारा वॉशर्स हम लोग बना भी रहे हैं, साथ साथ ये लेथ मशीन में जब तक कि वो काम कर रहा है ये भी हो रहा है। तो इट इज़ समहाउ वर्किंग फॉर अस। इसका वैसे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आई होप कि वो चैनल पे आ जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड दोस्तों, दिस इज़ टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। और जो बात है बेसिकली व्हाट वी वांट टू से इज़, मैं पहले इसको आपको एक चीज़ दिखाना है, दैट इज़ के इफ़ आई जूम यू इन यू वुड सी दिस इज़ वे आउट ऑफ इट्स वर्किंग रेंज। तो कायदे से यहाँ पे 3 स्क्रूज है, बिकॉज इसके पीछे एक गिप स्क्रू है दैट होल्ड्स दिस एंटायर पार्ट जहाँ पे बोरिंग बार माउंट होता है। एंड ये एक स्क्रूज तो खैर ठीक है, इसको तो हम लोग वैसे भी काम पे नहीं ले सकते बिकॉज ट्रैवल ज़्यादा होगा नहीं, बट दिस 2 स्क्रूज एंड ये स्क्रू अभी कुछ और ही जाएगा। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया है क्लोज टू अराउंड 94 या 95 तक मिलीमीटर्स तक हम लोग इसको बोर कर पाएंगे। देन वी हैव टू फिगर आउट सम वे कि बाकी का जो 135 मिलीमीटर तक हम लोग को जाना है, बिकॉज वी डोंट हैव अ बोरिंग हेड बिगर देन दिस। आई विश टू बाय अ बोरिंग हेड बिगर देन दिस बिफोर आई बाई द चक, बिकॉज क्या है ये बहुत वर्सटाइल है। कोई भी सामान जो लेथ में आप चक नहीं कर सकते उसमें आप बोरिंग का काम कर सकते हैं। इट हैज़ दिस यूजेस, आई अंडरस्टैंड मिलिंग मशीन हैज़ दिस यूजेस, बट मुझे इस बात का बहुत पीड़ा हो रहा है क्योंकि जस्ट कुछ 2 इंच के लिए 1 इंच ऑन इधर साइड के लिए हम लोग ये इसमें माउंट नहीं कर पाए। बट दैट अगेन द वर्क मस्ट बी डन, तो ये काम चल रहा है अभी। बट देन इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट आई वुड, इसका 95 मिलीमीटर तक हो गया ना, तो उसके बाद ये बोरिंग मिलीमीटर को काट के 95 मिलीमीटर तक करेंगे ताकि ये ऐसे बैठ के अंदर चला जाए। बट देन ओके, वो देखेंगे जब वो टाइम पर आएंगे। राइट नाउ लेट्स गो टू द टारगेट ऑफ आवर 95 मिलीमीटर। और 95 मिलीमीटर आते आते ना ये स्क्रू तक आ जाएगा, ये इसका जो हेड का नीचे का पुर्जा है ये स्क्रू तक आ जाएगा। उसके बाद वी डोंट वांट टू गो एनी फर्दर। और फीट को हम लोगों ने बहुत ही कम रखा है बिकॉज द डेप्थ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस होल has increased significantly, and then इसका यहाँ पे भी सपोर्ट बहुत कम है। so all right, तो फाइनल होल का डायमीटर कुछ 95.5 के आसपास होगा। हाँ, इवन बेटर 96 है। Okay, so now let's see what we can do.
I bring you in close so that you can also see. ये बहुत दूर तक गया था, and now we are bringing close. All right. This is as close as this would go. Now let's take out this boring bar. अभी ये ऐसे यहाँ पे फिट होना चाहिए कायदे से, but as you can see this boring bar is big. How big? You already know the hole is 95 और 96 और इसका कुछ I believe 104. So थोड़ा सा ही ज़्यादा है. Now if we cut the boring bar to length, I think, और इसको ऐसे बिठाते हैं, then I believe जब ये नीचे आएगा it can bore out that way. तो let's cut the boring bar. तो कट कहाँ तक करना पड़ेगा? Let's cut it. I believe if it is visible, let me just bring this thing close. Okay. तो अगर यहाँ तक कट करेंगे ना, as you can see यहाँ पे हम लोगों ने शार्पी से मार्क किया, so this is going to work for us. ये बहुत ही गर्म है. ओके. हम लोग ना रिकॉर्ड बटन क्लिक करना भूल गया दोस्तों, वैर हम लोगों ने इसका इंस्टॉलेशन किया इसमें. ओके, एपोलॉजीज, बट देन ज़्यादा कुछ आप लोगों ने मिस आउट नहीं किया. बट वी डिड इज वी पुट इट, और 2 पास एक्चुअली ऑलरेडी हो गया. उसके बाद ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं कि राइट नाउ द इट इज़ वेरी रिजिड, और जैसे कि ये पूरा जा रहा है अंदर. ओके, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ, स्पिंडल का डायरेक्शन, तो फिर इसका फीड भी रिवर्स हुआ. तो अभी क्या वी शो यू द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल. मतलब प्रीवियस जैसे हम लोगों का प्रोसेस था वैसा ही है. वी गिव इन डेप्थ, इतना तक देख दिया, एंड देन वी टाइटन इट, पुट इन गियर, और थोड़ा सा कटिंग ऑयल हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ वी आर रनिंग इट इन हाई स्पीड, क्योंकि चिप्स भी तो ब्लू नहीं आ रहा, और बिकॉज पहले सपोर्ट बहुत कम था. अभी जैसे 3 स्क्रूज़ का, तीनों जो यहाँ पे स्क्रूज़ है, आई शो यू, तीनों जो यहाँ पे स्क्रूज़ है वो स्क्रूज़ का भी सपोर्ट मिल रहा है. तो दिस एंटायर सेटअप इज़ वेरी रिजिड. सो वी आर गोइंग टू गो विद द नेक्स्ट कट, एंड दिस इज़ वर्किंग. तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2 पासेस ऑलरेडी ले चुके हैं. दिस इज द 3rd पास इन दिस सेटअप. कटिंग इज वेरी स्मूथ, एंड आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मोकी राइट ओवर हियर. तो इसका जो ऑटो फीड है वो ऑटो फीड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. अभी ये कट ऑलमोस्ट ओवर हो गया, इसका ऑटो फीड अभी इनगेज होगा. या द ऑटो फीड इज़ ऑल्सो वर्किंग वेल. सो अभी दोस्तों पता नहीं ये वीडियो रिकॉर्डिंग में हुआ कि नहीं, बट देन घर से कॉल आया था, तो मम्मी खाने को बुला रहा है.
So what we are going to do is we are going to go have our lunch and then come back finish this. A few moments later. So I think this pass would make it to 135 millimeters. So this pass is almost over. We need to check where we stand. So yeah, bang on money. It's 135 millimeters. Actually by taking out this caliper it moved a little because it is ये बहुत ही फिडली है ये कैलिपर का जो है ना, क्योंकि यहाँ पे घुसाना पड़ रहा है फिर इसको निकालना पड़ रहा है. आई थिंक हाँ इसको निकलते ही इसका आउट हो रहा है. बट इट इज़ 135 इफ़ यू बिलीव मी. तो नाउ वी हैव टू गो विद द लास्ट पास क्योंकि डायग्राम कॉल्स फॉर 135.10. सो व्हाट वी डू इज़ वी नीड टू गिव इन 0.10 which I think is this right over here, and proceed with our last pass, and then we are going to conclude this video. We have to put it in some kind of a gear first. We are going to run with this. I think the finishing what comes out from this slow feed is better than the faster feed. This is ये जो एक्सपीरियंस है अपना वो एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्लो जो स्पीड है इसमें फिनिशिंग ज़्यादा आ रहा है अच्छा फास्ट स्पीड से. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फिनिशिंग पास. वी आर गोइंग टू लेट दिस रन.
इसको ऐसे मूव नहीं कर सकते बिकॉज, तो थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। ओके, द कट इज़ कंप्लीट नाउ। तो अभी इसको निकाल दिया बिकॉज ये बोर में टूल का जो स्क्रैच है वो नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द फिनिश बोर। आई होप वी आर इन आवर टारगेट डिमेंशन 135.10, 135.13, सॉरी ये दिख रहा है 135.13। बिकॉज ये कैलिपर है, हालांकि बहुत ही प्रिसाइज कैलिपर है, बट देन जो स्क्रू गेज जो आता है माइक्रोमीटर, उसका बराबरी तो नहीं कर सकते। हम लोगों के पास माइक्रोमीटर उतना बड़ा है नहीं, वरना हम लोग ये बोर गेज से चेक करते, और फिर मतलब स्नैप गेज जिसको कहते हैं, एंड देन हम लोग वैसे करते। बट देन ये जो है, ये इसका जो बोरिंग का पार्ट है, दिस इज़ कंप्लीट फाइनली। तो अगला जो वीडियो आएगा होल पैटर्न का आएगा, इसमें कुछ 8 होल्स होंगे, तो आई विल शो यू हाउ टू डू विद द होल पैटर्न। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही बोरिंग था, लंबा था, बहुत दिनों का वीडियो था, क्योंकि वर्कशॉप में कुछ और भी काम चल रहे हैं, जिसके चलते मैं इसमें पूरा ध्यान नहीं दे पाया। बट दे रहा है दुरुस्त रहा है, ये काम हो गया, शायद से वीडियो उसके भी बाद आएगा। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग गाइस एंड गॉड ब्लेस।